A very good morning to one and all. It is my proud privilege to extend to you all a very warm welcome on behalf of the organizing committee to the Fostering Make in India through Startup and Innovation at National Forensic Sciences University. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सितंबर 2014 में राष्ट्र निर्माण की पहल के एक और व्यापक समूह के एक भाग के रूप में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इस पहल के पीछे मुख्य कारण देश के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना और भारत में व्यापार शुरू करने को आसान बनाना था। केवल विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने से अधिक मेक इन इंडिया पुरानी प्रक्रियाओं और नीतियों के व्यापक और अभूतपूर्व कायापलट का प्रतिनिधित्व करता है। Thus, to play an important role in the making of New India towards the realization of Atmanirbhar Bharat, a series of programs have been initiated at various universities to have fruitful interactions with different stakeholders. The silent features of the above planned programs will be interactive sessions with the students, innovators, and startups. With this brief introduction, ladies and gentlemen, let me take an opportunity to welcome our distinguished dignitaries, introducing them to you all. हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे समक्ष हैं, जो सशक्त भारत के रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। माननीय, हम आपका हृदयपूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। May I request Professor S.O. Junare to offer floral welcome and memento as a mark of gratitude and respect to Honorable Shri Ashwini Vaishnav ji. थैंक यू सर। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। ड्यू टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, श्री जीतू भाई वाघवानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, could not come over here. We also extend hearty welcome to him and he has conveyed his blessings. Dr. Kuber Dindor, Minister of State for Higher Education and Technical Education, also could not be here. Distinguished guests, Mr. S.J. Heather, Principal Secretary Higher and Technical Education, Government of Gujarat, also could not be here, but sir has also conveyed his blessings. May I request Dr. Satish Kumar to offer floral welcome and memento to Shri M. Nagarajan, IAS, Commissioner of Higher Education, Gujarat. Thank you, sir. A special welcome to all the dignitaries of the dais and on the dais, distinguished guests, galaxy of intellectuals, press and media, my dear students, ladies and gentlemen, for taking time off from your busy schedule to grace the function. Professor S.O. Junare is an eminent, decisive and development-oriented leader. He has been the backbone of the university. His focus on forensic education, development in the society
efforts to bring qualitative difference in the work atmosphere has made him a popular and respected persona and a pioneer forensic accountant across the length and breadth of India. Presently, he is Campus Director of Delhi Campus and Acting Vice Chancellor of National Forensic Sciences University, Gandhinagar Campus. With this handful introduction, may I request Professor S.O. Junare sir to deliver welcome address. Sir, please. Respected Sri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, Government of India, Honorable Nagarajan ji, Director Technical Education, Government of Gujarat, Professor Naveen Chaudhary ji, all faculty members, officers from Government of Gujarat as well as Government of India, all my faculty members and dear students. Today is very important day for our university because none other than Honorable Minister of Railways, Communications and Electronic and Communication and Technology, Government of India, himself remain present to interact with the students. This is the first interaction of this academic year wherein actually the Honorable Minister himself want to discuss with students. Sir, this National Forensic Sciences University has been established in 2008-9 by the then Chief Minister and present Prime Minister Honorable Narendra Bhai Modi ji. When he was Chief Minister of Gujarat, that time he established this university in the name of Gujarat Forensic Sciences University. And when he is a Prime Minister of India, after 12 years of working of this university is elevated as a national university and renamed as National Forensic Sciences University, and the university has been given special status of institution of national importance. Sir, this is the only university not only in India but in the world which is catering the needs of forensic education, training, research and consultancy. So in entire world there is no other institution which is conducting such type of education and training for police, judiciary and forensic scientists. So this university is conducting more than 70 programs in the field of forensic science only. We are very specialized university wherein we conduct all the programs related to forensic science. It may be food forensics, pharmacy forensics, wildlife forensics, economic crimes, cyber security, forensic accounting, forensic psychology and so on, DNA, fingerprinting, question documents and several others. One other area is cyber security and digital forensics. So wherein we conduct bachelor as well as master level program and postgraduate diploma program, sir. Here we give focus on education, training, research and consultancy. So our students are being placed in different organizations which are engaged in crime prevention and crime investigation, because the university's activities are related to crime investigation and crime prevention. So we are having one course for each type of crime, sir. So if there is any crime, so we will conduct some special program to investigate this crime in scientific way and prevent this type of crimes. So our students are being actually placed in police stations, judiciary and forensic science laboratories and several corporate sectors. They are actually requesting our university to depute their students in different areas. So as we were discussing, sir, cyber security and digital forensic is one of our domain. Another is, sir, we are having Center of Excellence in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, wherein we get drugs from different police and investigating agencies including DRI, CBI and Narcotics Control Bureau to investigate these actually cases. We are getting hundreds of instruments on daily basis from police and investigating agencies related to cyber and digital forensics. So thus actually we are helping investigating agencies and judiciary, sir. So
we actually propose to have our special center so that we can have a special actually agreement or special actually relationship with railways also, wherein we can depute our students in different region to investigate the crimes in railways. In railways also actually they are having different types of security structure, wherein railway police are separate and our civil police are separate. So when there is any need, so our university can help to establish the special dedicated forensic science laboratories in different regions like Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, Nagpur, anywhere. So we can set up that laboratory where you can investigate cases on your own. We will support by providing skilled manpower. So that we can provide, sir. And we can provide technological support also, so that our expert professors and faculty and students, they can go and investigate this type of crime, sir. In most of the cases, you do not to have to report the case to the police officer. Only suppose sometimes you want to investigate a case. For example, in case of accident, where that is sabotage or there is a mechanical failure. If there is mechanical failure, who is in the fault? Sometimes they say that that is fault of technical, mechanical department. Somebody will tell this is electronic department fault. Somebody will tell that is actually something else. So how to investigate such crimes? So we can help, we can have association in that area, sir. As far as our students are concerned, sir, they are from different areas, including forensic psychology, wherein there is no evidence available, then how to investigate the crime. So we are having different types of technologies available, starting from eye detect, face detect, layer wise analysis, then lie detector, and so on, even brain oscillation and electronic signature system, that is BOS. So we are having lot of technologies available through which we can even investigate the cases from hardcore criminal. So they are trained like including terrorists. So lot of technologies available. So through which actually we can support Indian Railway and Indian society at large, sir. Today actually our students are here and they are actually interested to know lot of activities related to their field. For example, they want to start some innovation, some research or some startup. So how they will get actually opportunities to show their knowledge, to show their talents and bring some new output or new product in the market. So today we are fortunate that our honorable Minister sir is here, and honorable Education Minister Dr. Jitubhai Waghani sir and Dr. Dindor sir, actually they will be joining soon. So we are waiting for them also. So because of shortage of time, Honorable Minister Sri Ashwini Vaishnavji has actually consented to come here and to interact with the students. So I will not take much time. Once again from our university side, our faculty and all students as well as our Honorable Vice Chancellor Dr. J.M. Vyas sir, I welcome you sir in this auspicious event, sir. Thank you very much, sir. Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnavji's inspiring life journey began in the lanes Rani in Pali district, Rajasthan. He was born on 18th July 1970. He comes from a family of humble origin. He graduated from Engineering College as gold medalist and completed his MTech from IIT Kanpur. Honorable Sir has also completed MBA from Wharton School of University of Pennsylvania. In 1994, Honorable Sir joined Indian Administrative Services in the Odisha cadre. He has also held several rich, illustrious, coveted positions, and presently he is serving as Ministry of Railways, Communications and Electronics and Information Technology in Government of India. May I request Honorable Sir to enlighten the august gathering. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. केम छो? थोड़ा और जोश चाहिए. केम छो? हाँ, जो बाहर से आए वो भी बोल सकते हैं मजामा. Could you learn this beautiful language? When I ask you केम छो, what's your answer? Wow, good. मैंने सोचा भाषण नहीं देना है, आपके साथ बातचीत करनी है. भाषण दूंगा, लंच से पहले का टाइम है, पेट कुछ बोल रहा है, सामने मंच से क्या बोला जा रहा है कौन सुनाई देगा, पेट की बात सुनेगा ना सब. तो मैंने सोचा भाषण नहीं दूंगा, बिल्कुल भाषण नहीं.
सिर्फ 2 बातें बोलूंगा, उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चंस, राइट? ये ठीक है, चलेगा? अच्छे से चलेगा? चलो गुड। लास्ट में जो बैठे हैं, चलेगा? चलो ठीक है, गुड। मैं 2 बातें बताऊंगा सिर्फ। एक तो टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की जो दुनिया है, उस दुनिया में सरकार क्या कर रही है और आप उससे कैसे जुड़ सकते हैं, पहला ये। दूसरा विषय रखूंगा, रेलवे में किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और उसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं। ये 2 विषय आपके सामने। फिर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नहीं पूछना है, फेल हो जाएगी। मस्ते से आराम से बातें करेंगे, राइट? तो पहला पॉइंट, 10 साल पहले अगर कोई देखे भारत में स्टार्टअप्स कितने थे, तो गैस करो भाई कितने होंगे? गैस करो, कोई गैस करेगा? कितना? बराबर, बिल्कुल बराबर 6। 100, 200, 300, 400, ज्यादा से ज्यादा। आज कितने हैं? गैस करो कितना? अरे बाप रे, सब के सब जनरल नॉलेज के टॉपर है। 75,000, 73,000। सोचो, कहां 200, 300 और कहां पे 75,000। ये जर्नी है देश की, ये जर्नी है जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, देश के नौजवानों की ऊर्जा को ऐसी डायरेक्शन में लगाना कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आपकी एनर्जी से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके विचारों से उसको सॉल्व। अब देखो किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम। आप ये सोचो, अगर एक हमारे रिमोट गांव में किसी को पेमेंट करना हो, तो सोचो पहले का तरीका याद करो। आप में से कितने लोग हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं? ज्यादातर, खूब सारे, मेरे जैसे कम ही है। मनी ऑर्डर किसी ने सुना है? सुना होगा, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा या कहानियों में सुना होना, दादा दादी बताते होंगे। किसने दादा दादी से सुना मनी ऑर्डर? देखो इतने सारे लोगों ने दादा दादी से सुना। क्या जमाना था भाई, लिखो, फॉर्म भरो, जाओ, पैसे गिनो, पोस्टमैन गिनेगा उसको, गिन के वापस, पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। वो जब तक रिसीट नहीं आएगी मनी ऑर्डर की, तब तक तो दिल धक 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 धक, पहुंचे ही नहीं। राखी के पैसे किसने मनी ऑर्डर से भेजे? सच में? मेरी जनरेशन के तो थोड़ा ना आप, फिर भी भेजे। अरे आज तो सब अलग तरीके से भेजते हैं। तो देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन कैसा निकला? कैसा सॉल्यूशन निकला भाई? क्या सॉल्यूशन निकला? सबके सब जनरल नॉलेज के पूरे टॉपर, सिविल सर्विसेज दे देना, सब जीत जाओ, सब पास हो जाओगे। तो सब के सब देखो, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया यूपीआई। अब इस सॉल्यूशन की खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं क्यों ये एग्जांपल दिया? दुनिया के बहुत सारे समृद्ध देश ऐसे हैं जिन्होंने ये काम कुछ लिमिटेड कंपनियों के हाथ में छोड़ दिया। ठीक है, उनका अपना तरीका है। कुछ ऐसे देश भी हैं, मैं नाम किसी का लूंगा नहीं, जिन्होंने सारा का सारा मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल कि उसके हिसाब से चले। भारत ने क्या किया? भारत ने न तो किसी पावरफुल कंपनी के हाथ में दिया, न ही सरकार के कंट्रोल में रखा। क्या मॉडल बनाया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल। कैसा है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल? एक पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना। ये प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स है, इससे हर्षित भाई भी जुड़ सकता है, इससे जिग्नेश भाई भी जुड़ सकता है, इससे अश्विन भाई भी जुड़ सकता है, इससे बैंक ऑफ बड़ौदा भी जुड़ सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ सकता है, HDFC बैंक भी जुड़ सकता है,
फोन पे भी जुड़ सकता है, भारत पे भी जुड़ सकता है, पेटीएम भी जुड़ सकता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, पब्लिक डिजिटल गुड्स का, कि जिससे कोई भी जुड़ जाए। क्यों ऐसा बनाया? इसलिए कि हर तरह का प्रॉब्लम कोई एक सॉल्व करे ऐसा संभव नहीं होता। हर तरह की अलग अलग प्रॉब्लम को अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से सोचेंगे। जब अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन निकलेंगे। दूसरा, इसके पीछे बड़ा पर्पस था। वो पर्पस क्या है? वो कारण क्या था? कारण था हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश में जो एनर्जी है, उस एनर्जी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म का यूज करके आज करीब करीब 12,000 फिनटेक, 12,000 फिनटेक जो यूपीआई का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। हर तरह के सॉल्यूशन, यूपीआई प्लस आधार प्लस डिजी लॉकर, ये जो जितने भी सॉल्यूशंस निकाले, अब जैसे डिजी लॉकर है, किसी के भी सर्टिफिकेट हो उसके अंदर आराम से आ गए। जो जॉब एम्प्लॉयर है उसको देखना है, सर्टिफिकेट चेक करना, खट टिक 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 टिक। नहीं तो कोई फोटोशॉपिंग करेगा मेरे जैसा, तो कुछ भी उसमें लिख देगा, कुछ भी उसमें कर देगा, राइट? तो वो सब खत्म, एक आपके पास ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आ गया। इस तरह के कई सारे पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बने, पब्लिक डिजिटल गुड्स बने। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया, उस इकोसिस्टम का उपयोग करके आज कोई भी अपना स्टार्टअप बनाए, कोई भी अपना सॉल्यूशन लाए और उस सॉल्यूशन से लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन भी लाए और अपने लिए भी एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन बने, बहुत अच्छा बिजनेस का एक नया तरीका बने। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल में सबसे बड़ी बात यह है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को जुड़ने का एक मौका। अब इसी तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म अगला कौन सा बन रहा है बड़ा? ONDC। वेरी गुड, बच्चे बताते तो मजा आता है। ONDC नाम सुना आपने? कितने लोगों ने सुना? 1 2 3 4 5 7 10 15। वेरी गुड। नेशनल हेल्थ मिशन का नाम सुना है किसने? डिजिटल हेल्थ मिशन का नाम? वेरी गुड, कई लोगों ने सुना है, ज्यादा लोगों ने सुना है। ये बिल्कुल यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म है। अब देखो, जब यूपीआई को, बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ले रहा हूं नाम। पहले एक बड़ी कंपनी, 2 बड़ी कंपनियां, आप नाम खुद समझ जाओगे, वो सोचती थी कि हमारी खुद की टेक्नोलॉजी से हम काम करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूपीआई की टेक्नोलॉजी बेहतर है, तो वो भी यूपीआई पे आ गए। इसका नाम है, कौन सी कंपनी है भाई? क्विज देखे? सारी दुनिया गूगल को पूछ के समझती है भाई। तो गूगल पे किस पे काम करता है? यूपीआई पे काम करता है। वैसा ही अब दुनिया के कई देश उस तरफ जाएंगे। तो सेम प्लेटफॉर्म आ रहा है डिजिटल हेल्थ मिशन का और ONDC का। वैसा ही प्लेटफॉर्म आगे बनेगा लॉजिस्टिक्स के लिए, वैसा ही प्लेटफॉर्म आगे बनेगा एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो ये जो मेथड PM साहब का लगाया हुआ है, इस तरीके से, इस पद्धति से हजारों की संख्या में आप लोग जुड़ सकते। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। बराबर है? यहाँ पे, यहाँ तक हम सब ठीक है? क्लास 7 है ना? नहीं भाई, प्रोफेसर मत क्या देना मुझे, मुश्किल हो जाएगी। नौकरी है कि अच्छी है, तो नौकरी नहीं चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आता हूं। अब आपको कैसे रेलवे से जोड़े, पोस्ट से जोड़े, टेलीकॉम से जोड़े, डिफेंस से जोड़े, इस तरह के कई सारे बड़े बड़े विभाग हैं। भाई रेलवे तो हमारा बहुत बड़ा विभाग है। कितने लाख लोग काम करते हैं भाई रेलवे में? अंदाज लगाओ कितने लोग काम करते होंगे रेलवे में? कितने? कितने? 12 लाख। 12 लाख लोग काम करते हैं। 12 लाख।
मैं अभी किसी दूसरे देश के मंत्री थे, उनको जब बताया, मैंने कहा आप इन सब का परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे करते होंगे साल के एंड में? 12 लाख बहुत बड़ा, कई देशों की तो ऐसी जनसंख्या भी नहीं है, पूरे देश की जनसंख्या नहीं है इतनी। वैसे ही पोस्ट कितने लोग काम करते हैं, लाख में नहीं बोलूंगा मैं, गैस करते हैं, लेकिन अंदाज लगाओ ना, क्या है, तुक्का मारना होता है, लग जाए तो लग जाए। 4 लाख लोग काम करते हैं, 4 लाख पीपल, 400,000 पीपल वर्क इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, 1.2 मिलियन पीपल वर्क इन द रेलवे डिपार्टमेंट। इतनी बड़ी संस्थाएं, इन संस्थाओं में आप कैसे जुड़े? अब जैसे पोस्टल पेमेंट बैंक है, देश के हर कोने कोने में पहुंचा हुआ है ये बैंक। देश के समझो हर दूसरे तीसरे गांव में ये बैंक का एक पहुंच है। छोटा सा डिवाइस हो, कंप्यूटर हो, कोई ना कोई तरीका हो, बंदा वहां पे एक रहता है। रेलवे का नेटवर्क विशाल, 70,000 किलोमीटर, कितने स्टेशन, करीब हम सब ने रेलवे की यात्रा तो की होगी, की है ना, लंबी चौड़ी जर्नी, इतना बड़ा नेटवर्क, इसमें आप कैसे सोल्यूशन दे सकते? तो अपन ने एक तरीका निकाला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखो, बड़ी कंपनियां तो कभी भी सोल्यूशन लेके आ सकती है, नौजवान कैसे सोल्यूशन लेके आए रेलवे में या पोस्ट में या डिफेंस में, उसका एक तरीका निकाला गया। अब आप अगर किसी प्रॉब्लम पे रेलवे की काम करना चाहते हैं, शुरू में 11 प्रॉब्लम्स लगाइए और डालेंगे नहीं, एक बार समझ जाए, सीख जाए, आप समझ जाए रेलवे आपको समझ जाए, उसके बाद में और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो एक बार आप सब देखना, उसमें शायद आपके सब्जेक्ट की भी कुछ हो। जैसे मान लो ट्रैक है, ट्रैक की कंडीशन कैसी है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं पे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस तो नहीं आ गया, कहीं पे ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई उसकी चिपिंग तो नहीं हो गई साइड से, राइट? तो एक ज़माना था जिसमें ऑब्जर्वेशन से उसको सॉल्व करते थे। क्या उसका एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है? आप लोग तो बड़े बड़े वो कैमरा बनाते हो, मेगापिक्सल से भी ऊपर गीगापिक्सल में कैमराज बनाते हो, लाइडार यूज़ करते हो, राइट? कई सारी टेक्नोलॉजीज हो सकती है। क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके एक नया सॉल्यूशन निकाला जा सकता है? तो अब बड़ी कंपनियां अगर आती तो वो अपने कहते भाई हमने ये जर्मनी में लगाया, हमने ऑस्ट्रिया में लगाया, यहाँ लगाया, वहाँ लगाया, फलाना ठिकाना, इस तरह से करके अपना सॉल्यूशन लाते। मज़ा तब आए जब कोई अपना नौजवान भाई या नौजवान अपने साथी, हमारी बहनें अगर निकाले सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन को फिर पहले भारत में प्रूव करें और फिर पूरी दुनिया में लेके जाए। जो भारत में चलेगा वो तो सारी दुनिया में चलना ही चलना है। मजा तो उसमें आए। तो अब उसके लिए आपके सामने एक सॉल्यूशन है। आप जुड़ो। अभी तक कितने जुड़े हैं भाई वेद? करीब 146 या 150 लोग जुड़ चुके हैं। 150 के आसपास स्टार्टअप्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप सब जुड़ो और आप में से जिसको भी लगे कि ये प्रॉब्लम, ये बहुत ही मजा है परीक्षा में अगर एग्जाम पेपर खुद को सेट करने को मिल जाए, ऐसा हो तो कितना मजा है। प्रॉब्लम आंसर तो अपने को देना पड़ता ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर ही खुद को सेट करने को मिल जाए तो मजा है ना। तो अब आपका एक नया इसमें सिस्टम बनेगा जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप दो और फिर उसके सॉल्यूशन भी आप ही बताओ, ताकि A++ अपने आप मिले। तो अभी जो प्रॉब्लम्स रखी हुई है उसके साथ तो जुड़ो ही जुड़ो, और नई प्रॉब्लम्स का भी एक तरीका बहुत जल्दी निकलने वाला है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार जुड़ने लगे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जब स्टार्टअप एकदम यंग होता है, जिसको अभी तक कोई सीरीज ए फंडिंग नहीं हुए, वो फंडिंग नहीं है, उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। जो स्टार्टअप्स में भाई काम कर रहे हैं, आप लोग
बना रहे हो, आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से आती होगी समझ में, बराबर है। मेरा खुद का भी इस तरह का अनुभव रहा है। बहुत मुश्किल होती है, खाने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई किसी जगह जाके पिच करना है तो यार किसी दोस्त से जैकेट मांग के ना, कि अच्छा जैकेट होना चाहिए साफ सुथरा, बड़ी हालत ख़राब होती है। तो हमने इसमें इस पॉलिसी में जो ध्यान रखा है, सबसे बड़ी बात, जो आपकी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट का 50%, 50% कॉस्ट रेलवे भी आएगी, अप टू 1.5 करोड़। अप टू 1.5 करोड़ रुपए तक का कॉस्ट जितनी आएगी वो रेलवे बेयर करेगी। प्लस अगर अच्छा सॉल्यूशन है तो रेलवे उसके लिए आपको ऑर्डर देगी, यानी आपको सीधा एक रेवेन्यू का सोर्स मिल गया। और अगर अच्छा चल गया पहले ऑर्डर में तो रेलवे आपको बड़ा ऑर्डर देगा, पूरे देश भर में चला के दिखाओ भाई, कॉस्ट पे, फ्री में कुछ नहीं, कॉस्ट पे। फ्री वाले तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं, पता नहीं किसको लुभाने की कोशिश करते हैं। फ्री से कोई दुनिया चलती है? चलती है क्या? नहीं चलती ना। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ गए? राजनीति में ही बात कर रहा हूं। तो फ्री में नहीं, आपको पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे, ताकि आप इस सॉल्यूशन को लगाओ और खूब बड़े हो जाओ, खूब ग्रो करो रेलवे के साथ। ऐसा ही पोस्ट में, पेमेंट बैंक के साथ अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के बिल्कुल दूर दराज अंचल में भी अगर कोई सॉल्यूशन लगाना चाहते हो तो आपके पास पूरा वो उसका कंप्लीट आज एक सेटअप है। मैं आपको बताऊं, डिफेंस में कम से कम आज 100 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत की, सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन से प्रोडक्ट में आए, प्रोडक्ट से आगे मैन्युफैक्चरिंग में इतना डेवलप हो रहे हैं कि आश्चर्यजनक। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन दैट मेनी ऑफ दीज स्टार्टअप्स हैव नाउ स्केल्ड अप टू बिकम गुड क्वालिटी कंपनीज, एंड नाउ दे आर एट अ पोजिशन व्हेन दे कैन टेक द सॉल्यूशंस टू outside that sector, beyond that sector। ये है स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम जो डेवलप हुआ है देश में। अब आती है बात तीसरे क्वेश्चन से, चालू करें? चलो, किधर से स्टार्ट करेंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना भाई। Good morning, sir. Sir, you talked about the solutions to the problems that railway faces and how we could contribute to it. So, one of the innovations that the railway is currently undergoing is the electrification of railway lines, and this is what is needed probably because these fuel engines and all, they are old now, and to help in the climate change process, this is what we need. But sir, there had been news of how India's electric grid, some anti-national elements have tried to harm that. So, is there not a fear that if national electric grid is attacked, the railways, the functioning of railways might be impacted, which may leave the nation disabled because railway is the nation's lifeline. So, is there no concern of that? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो, मैं अब आपके सामने एक चैलेंज रखता हूँ, एक नया चैलेंज। आपकी यूनिवर्सिटी की एक टोली बने, एक टीम बने, दैट टीम शुड, वी विल प्रोवाइड यू द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द रेलवेज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, राइट? उसकी साइबर सिक्योरिटी का पूरा एक सॉल्यूशन बनाओ। डन? करेंगे? कितने लोग वॉलंटियर होना चाहेंगे? ज़्यादा लोग हैं? कम है? ज़्यादा है? चलो, गुड। कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों का? देखो भाई, आईआईटी मद्रास वालों में जब वहाँ गया मैं, कैसे सिलेक्शन होगा? हाइपर लूप के लिए एकदम नई टेक्नोलॉजी बनानी है, हाइपर लूप, और 600 की स्पीड पे चल सके। तो उन लोगों ने पूरी एक टीम बनाई, 71 लोगों की, 72वां मेंबर मैं था, 71 लोगों की टीम बनाई। तो आप भी एक टीम बनाओ
टीम बनाओ, आपकी टीम की कंप्लीट फैसिलिटी उसको सोल्यूशन को निकालने के लिए, बनाने के लिए, आगे उसको डिप्लॉय करने के लिए, चाहे टाइम लो भले ही 6 महीने लगे, 10 महीने लगे, 2 साल लगे, लेकिन अच्छा सॉलिड सोल्यूशन बनाए। डन। ये आप एक प्रोजेक्ट लीजिए साहब, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रोजेक्ट। Hi sir, thank you so much for your talk. Very inspiring. I am genuinely curious and it's not related to this, but I wanted to know how does the railway take checks on people who are illegal immigrants or child traffickers? How do they have the security system and generally, because you can abscond very easily. It's easy. So how do you have the checks and balances? It's a very complex problem, very, very complex problem, and a very, very important human angle is attached to it. Thank you very much for bringing this point. See, currently our solutions are based on 3 elements. First is vigilance. We watch. We actually check if there is a child who is moving around, there are suspicious circumstances, child is alone, or child is having that fear in its behavior. If those things are demonstrated, immediately we take some action. Second is we use little bit of good technology where some facial recognition, certain behavioral aspects, those are checked using technology. Third is of course interaction with the state governments, with the police, with the state police and lots of other agencies. But that is another problem, another thing where we can have huge infusion of technology, where we can have much better solutions, AI driven by image processing, driven by behavior processing, then using some elements of investigation, where even a small evidence that we have can be used to take it to a next level. So if you want to make a proposal on this, I'm sure we will be able to support you, but then you have to create a very properly defined statement around it. Once you have that statement, then put that question on the question paper and then give the answer. Okay? मुझे लगता है यहाँ पे 10-12 प्रोजेक्ट आ जाएंगे आज. यस, यहाँ पे भाई LLBs, लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंचेस. LLB का मतलब समझते हो? क्या होता है LLB का मतलब? लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच. मेरा जैसा बंदा हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता था. Sir, there are a lot of startups coming and establishing, but what I have seen is that many big startups are also loss-making these days. So, how is the government taking care of it? Because ultimately, it will contribute to the NPAs. So, rather than growing the economy, they are, increasing the NPAs through banks and loans. So, स्टार्टअप्स की दुनिया ही अलग है, एकदम अलग दुनिया. भाई बताओ, स्टार्टअप वाले कैश बर्न, सरकार लोन नहीं देती उसमें, राइट? उसमें बैठो, गवर्नमेंट का लोन नहीं जाता उसमें, बैंक्स का लोन भी नहीं जाता. देयर इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ वेंचर कैपिटल which basically understands that if a startup is growing in terms of what is its reach, then there will be future opportunities to create revenue out of that. So that's the model on which many of the startups work. So the losses which are seen as losses in a normal business are seen as an investment in a startup world. It's a very different world. It's a very different way of thinking. So उस तरीके से सोचा जाता है कि मान लो आज 1 करोड़ कस्टमर बनाने के लिए मुझे इतना खर्चा करना है, इतना कैश बर्न करना है, इतना लॉस लेना है, तो वो 1 करोड़ कस्टमर के एक्विजिशन का इन्वेस्टमेंट हो गया. उस तरीके से इधर माइक देंगे. सर, मैं बिहार से आता हूँ और रेलवे की जो प्राइड और प्लाइट है वो बिहार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है. सर, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है WT,
इट्स नॉट विद टिकट, विदाउट टिकट। और ट्रेन में आप चलिए सर तो मैक्स बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो WT चलते हैं, मानता है उसमें बहुत सारे सही वाले WT हैं जो विदाउट टिकट इसलिए चलते हैं कि वो उनको पैसे नहीं पे करने हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं सर जो एंड टाइम में ट्रेन पकड़ते हैं, उसमें फैमिली होती है, उनके एसोसिएट्स होते हैं, और वो जल्दीबाजी में, गांव देहात में होता है सर, जैसे तैसे स्टेशन पहुँचे, 11th आवर में जो गाड़ी लगी हुई है भाग के पकड़े, उसमें बोरा भी चढ़ाना है, सब्जी भी चढ़ानी है, और उस केस में जब वो चढ़ते हैं तो उनके पास टिकट होती नहीं है, वो चढ़ जाते हैं। अब TT महोदय आए सर, तसीलना चालू सर, क्या इसको हम एड्रेस कर सकते हैं ये आई बेस्ड टेक्निक और ये स्टार्टअप अप्रोच से, जिससे कि उसके पास एक चांस रहे अपनी चीज़ों को बताने के लिए कि देखिए हम चढ़े, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी, या कुछ ऐसा वो कर सके जिससे चढ़ने के बाद भी जब TT पहुँचे उससे पहले वो बता सके कि मैंने एक जेन्युइन स्टेप लिया है, मुझे वो उससे एग्जाम्प्ट किया जाए। ऐसा कुछ अगर आप प्रकाश डाल सके सर। जब मैंने पहली बार ये बात रेलवे के अफसरों को बोली तो पता है क्या आंसर आया? साहब इसके बाद में कोई टिकट खरीदेगा ही नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। गुड आफ्टरनून सर। सर ने जो बोला उससे रिलेट करके मैं ये कहती हूँ, उन्होंने बोला कि जो इमरजेंसी में चढ़ते हैं और वो टिकट, तो सर कोई ऐसा सिस्टम ट्रेन के अंदर लगा दिया जाए जो बेसिकली एक कोच ही ऐसा हो जो बेसिकली इमरजेंसी में जो चढ़ते हुए लोग हैं उनके लिए हो, जिसमें कोई मशीन हो या साइबर से रिलेटेड या ऐसी चीज़ हो, तो अगर वो उस समय वहाँ पे टिकट ले रहे हैं तो TT का भी काम नहीं होगा सर। लाइक ये मेरा आइडिया है कि अगर आपको टिकट चाहिए है तो आप तो ट्रेन में भी। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन। सर गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमने देखा कि ट्रेन में तत्काल अवेलेबिलिटी और वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा रेलवे का एज अ करंट, तो हम ऐसा नहीं कर सकते एज अ करंट सिस्टम वेरिफिकेशन सिस्टम, जैसे एट अ प्रेजेंट मैं स्टेशन गया, मेरे को OTP वेरीफाइड करके TT एट अ टाइम मेरे को अपडेट दे कि हाँ सिस्टम अपडेट हो जाए ऊपर जाके कि हाँ ये सीट बुक हो चुकी है, वो जो सीट वैकेंट रहेगी वो लास्ट बुकिंग हो सकती है नेक्स्ट स्टेशन पे। ये दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर दैट कि हम, क्योंकि वेटिंग लिस्टेस बहुत ज़्यादा हो जाती है रेलवे में, कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब नहीं। देखो क्या है, अभी रेलवे में करीब डेली 2 से 2.5 करोड़ लोग 2 से 2.5 करोड़ लोग डेली ट्रैवल करते हैं। कितना? 2 से 2.5 करोड़, बड़ी संख्या है। साल के कितने हो गए? करीब करीब 750-800 करोड़। तो क्या देश की जनसंख्या 130 करोड़ है? 800-700 करोड़ कैसे हो सकता है? मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम ट्रैवल करते हैं, राइट? तो 800 करोड़ के आसपास की ट्रिप्स है। इतनी बड़ी डिमांड है, सप्लाई बढ़ानी है अपने को, तभी जाके इस तरह की कई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसके लिए मैं आप पे एक शेयर करना चाहूँगा। बहुत ही एक बड़ा संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी ने 2017 में। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ट्रेन्स चल रही है, वो ट्रेन्स चल रही है कौन से युग की? 1950s की, 1960s की, 1970s की टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स चल रही है। तो कैसे उसको अब हम लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स में कन्वर्ट करें? तो उन्होंने जब ये चैलेंज दिया, इंजीनियर्स ने काम करना चालू किया उस पर। 2019 में आई सबसे पहली वंदे भारत। वंदे भारत कितने लोगों ने फोटो देखा है? बाप रे, कितने लोगों ने देखा है? कितने लोग बैठे हैं उसमें? वाह, गुड। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो जिनको अच्छा लगा थम्स अप करो, लाइक करो, ठीक है, गुड। करीब करीब सभी। जिसको खराब लगा डाउन करो, एक भी नहीं, वेरी गुड। तो ये तो 0-10 वाला हो गया, बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 को अच्छा लगा, गुड। तो ये वंदे भारत पहली बनी 2019 में बन के आई। अब देखो ये ट्रेन की स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का पोटेंशियल। पटरी भी सुधारनी पड़ेगी, सिग्नलिंग सिस्टम भी सुधरेगा, तब जाके एक्चुअल्स 160 पे चलेगी, लेकिन 140-150 पे अभी भी ये चल जाती है। कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा। अब जैसे कोई भी फ़ोन होता है, उसका फ़ोन का वर्जन 1, 2, 3, 4, राइट?
तो अब वंदे भारत का नेक्स्ट वर्जन बन रहा है। इस नए वर्जन में सबसे खास बात, सबसे मजेदार चीज क्या है, इसके अंदर एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग तो होती है इतनी, जितना शॉक होता है शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसके अंदर एयर स्प्रिंग है। एयर स्प्रिंग से इसका जो राइड कंफर्ट है, उसके अंदर ट्रैवल करने का झटके लगते थे जो पुराने जमाने की ट्रेन्स में, इतनी शानदार स्मूथ हो जाएगी कि आप देखना। दूसरा, इसकी स्पीड, इसका जो एक्सीलरेशन है, स्पीड कितनी जल्दी कैच करती है। बुलेट कितने लोगों ने देखी है? बुलेट ट्रेन वीडियो तो देखा होगा, खूब वीडियो तो देखे होंगे। बुलेट ट्रेन 100 किलोमीटर की, एकदम जीरो से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़े, कितना टाइम लगता होगा? ना थोड़ा ज्यादा लगता है, 55 सेकेंड्स, आधा मिनट, अब मिनट से थोड़ा कम। 0 से 100 की स्पीड पकड़नी है भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी नहीं है। वंदे को कितना टाइम लगता है? वंदे को कितना टाइम लगेगा? 54 सेकेंड। मतलब बुलेट से भी वंदे को लगेगा 0 से 100 पहुंचने में 54 सेकेंड। अभी जो नया वर्जन बन के आ रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है इस पे कि जैसे बुलेट जब बनानी चालू की जापान ने, उनकी जो पहली बुलेट बनी थी, वो पहली बुलेट की स्पीड थी 163 किलोमीटर। अपनी पहली वंदे बनी, इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर। उनकी दूसरी बुलेट जब बनी, वो 180 की स्पीड पे थी। अपनी जो वंदे 2 बन रही है अभी, और अगस्त के महीने में, अगले महीने इसी टाइम तक करीब करीब 10, 12, 15 अगस्त के आसपास, 18 अगस्त के आसपास निकल के आ जाएगी फैक्ट्री से। इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में जो वंदे 3 बनेगी, वो 200 से 220 की स्पीड। और आप देख ही रहे हो, कितने लोगों ने जाके सूरत, वडोदरा के पास में बुलेट का काम चल रहा देखा वीडियो कितने लोगों ने देखा उसका? जाके पक्का सर्च करना, YouTube पे उसका वीडियो देखना। इतना तेजी से काम चल रहा है, 71 किलोमीटर उस पे ऑलरेडी उसके पिलर बन गए। तो एक बार इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर ले, सीख ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो देश में हजारों किलोमीटर अपने को वैसी बनानी है। हजारों किलोमीटर उसी हाई स्पीड की ट्रेन्स बनानी है। तो जब इस तरह का एक नेटवर्क बनेगा, काश 70 साल पहले ये लोग सोचते, 14 में सोचना चालू हुआ, लेकिन पहले से सोचते तो अब तक बहुत सारी चीजें बन जाती। तो इस तरह का जब नेटवर्क बनेगा ना, तब जो ये डिमांड सप्लाई के बीच में गैप है, ये पूरा होता है। मतलब बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करने का जज्बा भी है, तैयारी भी है। देखो 2014 से पहले रेलवे में मात्र 40-45 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। इतना बड़ा नेटवर्क, इतना विशाल देश, कुछ भी नहीं होता था ये अमाउंट। मोदी जी ने आके उसको सीधा डबल किया, 90,000 करोड़। अब उसको ले आए 1,37,000 करोड़ पे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है, ये जब इसके रिजल्ट आप दिखने लगेंगे, तब जाके रियल जो अपनी डिमांड है, जो अपना एस्पिरेशंस है। आपकी एस्पिरेशंस नहीं होती कि अपने यहाँ ट्रेन बिल्कुल यूरोप जैसी ट्रेन होती है ना? कितने लोगों की होती, देखें कितने लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं वही पुरानी वाली चलती रहे? एक भी नहीं है। ये हुई ना, ये देश का जज्बा है। तो अब इस जज्बे को, इस एस्पिरेशन को पूरा करना है। लगे हुए हैं, 75 ट्रेन निकालेंगे 2023 के 15 अगस्त तक। 75 ट्रेन मतलब कम से कम 300 शहरों को जोड़ लेगी, वो 250 शहरों को जोड़ लेगी। और उसके बाद में करीब 400 ट्रेन निकालेंगे अगले 3 साल 4 साल में। ऑलरेडी टेंडर हो गए, ऑलरेडी उसका प्रोसेस चालू हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन। मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतनी नई तरह की ट्रेन देखेंगे कि आपको लगेगा कि मोदी जी ने क्या सोच के आगे से आगे सोच के पूरी तैयारी करके रखी हुई है। वो तैयारी है आप लोगों के लिए, आपकी जनरेशन के लिए।
हाँ जी, पीछे। लगता है खाने का टाइम हो गया है। एक हाथ उठा सिर्फ। सर मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन देखे कि विदाउट टिकट से लोग ट्रैवल करते हैं। सो जो आजकल सिटीज़ में देखा है कि मेट्रो की टेक्नोलॉजी कैसी है, टिकट को क्यूआर स्कैन करके फिर ही आप प्लेटफॉर्म तक एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या हम ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल रेलवेज में भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ताकि जो लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम का देखो, AFCS वाला सोल्यूशन आपका बहुत बढ़िया पॉइंट है। हम लोग पहले आदतें थी हमारी क्यू में लगने की, अब सब चीजें किस पे आ गई? QR कोड पे। क्यू से हम QR कोड पे पहुंच चुके हैं। अब अपने को सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे ऐसे जिससे कि हम बीच में वो एक जो ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन AFCC का गेट होता है, वो गेट भी नहीं लगे, मोबाइल के अंदर ही सब चीजें आ जाएं। तो ये टारगेट कौन लेगा भाई आपकी टीम से कोई QR कोड बेस्ड सॉल्यूशन बनाने का? लेंगे आप लोग ये प्रोजेक्ट? कर लेंगे सर। 2 तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हो गए हैं यूनिवर्सिटी के, तीसरा भी ले लोगे? पहले 2 डिलीवर करके दिखाओ, पहले 2 पे डिलीवरी करके दिखाओ, फिर तीसरे प्रोजेक्ट पे आएंगे, राइट? और एक लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, ये है फॉरेंसिक साइंसेस की यूनिवर्सिटी, करेक्ट? आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, आप एक विजन, एक थॉट प्रोसेस, एक बहुत गहरी सोच के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और अब दुनिया भर में आपकी यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी साख बन गई है, एक अच्छी रेपुटेशन बन गई कि यहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं, वो नॉलेजेबल है, जानते हैं अपना सब्जेक्ट, अपना एक स्किल लेवल है, अपनी एक नॉलेज लेवल है। रेलवे में इतने बड़े नेटवर्क में जो जितने क्राइम्स होते हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कभी एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अब आपके साथ मिलके अगले 25 दिन के अंदर, आज कितनी तारीख है? 5, 25 और 5, 30 जुलाई तक आपका और रेलवे का MOU साइन होना चाहिए। रेलवे की फॉरेंसिक लेबोरेटरी सेट करने के लिए आप सेट करेंगे, आपका है वो लैब, मोबाइल लैब भी करेंगे और एक सेंट्रल लैब भी करेंगे। तो रेलवे के सारे फॉरेंसिक काम आपके। थैंक यू। बहुत बहुत आभार माननीय जी। Thank you, sir, for enlightening us, and we ensure that NFSU students will definitely come up to your expectations of leading India to the next level. Honorable sir, NFSU students have exuberantly participated in startups and the best were selected for felicitation. May I request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji to felicitate startup entrepreneurs of NFSU. The first in this category is Hardik Tapara. Hardik Tapara has started Arishti Info Labs Private Limited, which accelerates digital transformation by providing exceptional network visibility, threat detection and operational insight for OT and industrial IoT ecosystem. The next is Harsh Panchal, started Ansh Technologies, who are developing solutions which can help national security in the domain of drone forensics and open source intelligence. Next, we would like to felicitate Pratik Soni. Pratik Soni, who has started Covered Info Labs Private Limited, working for solutions in cyber forensics. The next in the category is Rushit Soni, working as Forensic Cyber Tech Private Limited, is the leading organization in the field of digital forensic and cyber technology. They provide end-to-end investigation services and training. The next is Kevashin Setna, working as Invisex Cyber Forensics LLP, working towards creating a dent in the cyber world.
The next in the category is Rutuj Vora, started as My Class Campus, providing advanced all-in-one ERP for education institution to digitize all the academic and manpower needs. The next we have Jigar Rawal, who started Stern Innovations and has tremendous contributions in pharma and nanotechnology. The next we have Harshit Ganatra, who started Deep Probe LLP, which deals with offering biotechnological solutions.